Good morning, students. Again, you are welcome in real numbers. Real numbers, we have seen two lectures. Okay, in these lectures, we have seen the number system, integers, a rational number, and irrational numbers, and the question based on the irrational numbers, especially. Okay, now here the second part of the same chapter is Euclid's division lemma. What is that Euclid's division lemma? है क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? दैट यू नो ऑल, आप सबको पता है ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या? सी, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा कुछ. जैसे इवन नंबर्स, यू नो ऑल, आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता है. 2, 4, 6, 8, 10, 12, these are the even numbers, and 1, 3, 5, 7, 9, 11, these are the odd numbers. 0 is also included in even numbers. Okay, definition even number की क्या है? All the numbers of which are divisible by 2, या फिर all the numbers multiple of 2. जो 2 के मल्टीपल हैं, एग्जैक्टली जो मल्टीपल्स होते हैं वही डिविजिबल होते हैं बाय द पर्टिकुलर नंबर. तो जो भी नंबर है 2 के मल्टीपल्स, दे आर इवन नंबर्स. ओके, तो मल्टीपल्स ऑफ 2 को अगर मैं 2n लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? आप सब बताइए. इफ ऑल दीज नंबर्स आर जस्ट रिप्रेजेंटेड बाय 2n, जनरली ये जनरलाइज फॉर्म है इवन नंबर्स का. इवन नंबर को जनरली हम 2n रिप्रेजेंट कर सकते हैं. n क्या है? n में भी देखिए यहाँ पे 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 2 into 4 is equal to 8, 2 into 5 is equal to 10, 2 into 6 is equal to 12. तो ये जो n है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है. Arbitrary constant, we can say variable rather. Okay, वो ले रहे हैं हम n. n means integers. Okay, positive integers here. Okay, so 2n is representing these all numbers. सारे even numbers जो हैं वो 2n से represent किए जा रहे हैं. मेरा एक क्वेश्चन है, ये 0 and then 1, you may see that, आप देख सकते हैं कि इस 0 में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो 1 आएगा, इस 2 में अगर 1 ऐड करूंगा तो 3 आएगा, इस 4 में अगर 1 ऐड करूंगा तो 5 आएगा, 6 में 1 ऐड करूंगा तो 7 आएगा. तो फिर हम ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Suppose even numbers are represented by 2n, then what are the odd numbers? Can I write it 2n plus 1? 2n plus 1 लिख सकता हूँ क्या? Yes, I can write. This is just the Euclid's division lemma. ये Euclid's division lemma है that all the numbers, all the integers, देखो even और odd number मिला के सारे positive integer हो गए. All the integers can be represented as the मल्टीपल ऑफ एनी वन नंबर. जैसे 2 की बात कर रहे हैं हम, तो सारे नंबर जितने भी नंबर हैं पॉजिटिव इंटीजर हैं, आइदर दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ 2n और 2n प्लस 1, या तो 2n होंगे या 2n प्लस 1 होंगे. इसका मतलब क्या है? सपोज 3 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 1s आर 2 एंड दिस 1 इज रिमाइंडर. ओके, अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करता हूं, 2 3s आर 6 and 1 again remainder is 1. मतलब जब भी हम इस 1 का मतलब क्या है? इस 1 का मतलब है whenever any a positive integer of this kind odd number, जब भी कोई odd number when it will be divided by 2 will get remainder 1 and remainder will never be equal to 2. remainder कभी 2 नहीं होगा, 2 से smaller होगा. in this case remainder is 0, in this case remainder is 1. मतलब अगर हम सारे नंबर्स को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा. 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा. इन द सिमिलर एक्सपांशन ऑफ दैट, जनरलाइजेशन ऑफ दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को लिखते हैं पहले, देन अगेन आई विल एक्सप्लेन यू यूजिंग दैट नंबर चार्ट. इसीलिए नंबर चार्ट लगाया है. आप लोग सोच रहे होंगे कि प्राइमरी का नंबर चार्ट सर ने यहाँ क्यों लगाया है. That is very simple. Understanding बहुत जरूरी है. Try to understand that. Okay. So what is Euclid's division lemma? Let two positive integers
A and B exists such that A is greater than B, then there exist two more positive integers, say Q and R, such that A can be written as BQ plus R. A can be written as BQ plus R, where R is greater than or equal to 0 and less than B. Is it clear? A is equal to BQ plus R. Please check it. This is called the, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, this is called the Euclid's division lemma and this is called the Euclid's division algorithm. ये उसका algorithm है. ओके, तो ये हुआ Euclid's division algorithm and Euclid's division lemma. ओके, what ये क्या कह रहा है exactly? A, suppose I am taking the example, some 10 and 2, where 10 is greater than 2, then there exist, 10 को कैसे लिख सकते हैं हम 2 के फॉर्म में, 2 into 5 plus 0, BQ plus R, R यहाँ 0 है और 5 Q है. Is it clear? If suppose I am taking 13 and 3, okay, so this 13 can be written as 3 into 4, that is 12 plus 1. यहाँ पे ये क्या है? A है, ये क्या है? B है, ये क्या है? Q है, and this is R. Understood? ये R कभी 3 से ग्रेटर हो सकता है? नहीं, 3 के इक्वल भी नहीं हो सकता. It will always be less than 3. समझ में आया? तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है. मेरे ख्याल से ये लेमा आपने 5th क्लास में पहली बार पढ़ा था. रिमाइंड करो, याद करो 2 मिनट. आपने एक रिलेशन पढ़ा था, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. द सेम इज दिस. यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है. दिस रिलेशन वाज एग्जैक्टली एक्सप्लेन्ड बाय यूक्लिड. ओके, एंड दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. अब इनका यहाँ नंबर से क्या रिलेशन है? पॉजिटिव इंटीजर से. आई एम एक्सप्लेनिंग यू. सी दैट अगर मैं 3 के मल्टीपल्स की बात करूं, अगर सारे पॉजिटिव इंटीजर हमको 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो 3 2 6 3 9 4 12 5 15 18 21 24 27 30 33 36 39, ये सब क्या है? 3n है. दे ऑल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3n. अब मुझे बताइए कि 4 क्या है? 3n प्लस 1. 4 क्या है? 3n प्लस 1. 7 क्या है? 3n प्लस 1. 10 क्या है? 3n प्लस 1. 13 क्या है? 3n प्लस 1. 16 क्या है? 3n प्लस 1. 19 क्या है? 3n प्लस 1. इज इट क्लियर? Whereas 5 3n plus 2 और 6 3n. So 3 when all the numbers are just being divided by 3, जब सारे पॉजिटिव इंटीजर 3 से डिवाइड किए जा रहे हैं तो आइदर दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ 3n या फिर 3n प्लस 1 या फिर 3n प्लस 2. बस 3n प्लस 3 नहीं होगा. 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो when all the positive integers are just being divided by 4, they may be represented as 4n, 4n plus 1, 4n plus 2, 4n plus 3. 4 से डिवाइड करने में केवल 4 फॉर्म्स बन सकते हैं. 4n, 4n plus 1, 4n plus 2, 4n plus 3. 5 से डिवाइड करेंगे तो 5n, 5n plus 1, 5n plus 2, 5n plus 3, 5n plus 4, 5n plus 5 नहीं रहेगा. Is it clear? The same way you can just extend or generalize it. ये बहुत सिंपल सी बात है. ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यहाँ देखिए, try to understand here again. If suppose we are talking about the numbers divisible by 5, तो 5 10, 5 और 10 के बीच में क्या है? 6 7 8 9. तो जब 6 को डिवाइड करेंगे हम 5 से तो 1 रिमाइंडर बचेगा. 7 को करेंगे तो 2 रिमाइंडर, 8 को 3 एंड 9 को 4. तो ये 5n plus 1, 5n plus 2, 5n plus 3, 5n plus 4.
इज इट क्लियर? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। प्लीज नोट डाउन दैट वेरी फास्ट। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को नोट कीजिए, इसके एप्लीकेशंस पे बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास की सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है, एनटीएससी के लिए जरूरी है, और नंबर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर सिस्टम। इज इट क्लियर? सो प्लीज नोट डाउन दिस फास्ट। Let two positive integers a and b exist such that a is greater than b. Then there exist two more positive integers q and r such that a is equal to bq plus r, where r is lying between 0 and b. Is it clear? Please note down this. Just make pause and note down this. Okay. Now we are just coming on the applications of Euclid's lemma, that is the algorithm you have written. Okay, now as I told, I'm just taking few example. Suppose I have taken 23 and 5, so this can be written as 23 is greater than 5. Suppose we need to represent it as the algorithm. So as you know, 23 you just divide it by 5, 5 4s are 20, remainder is 3. So 23 can be written as 5 into 4, 20 plus 3. Is it clear? This is the Euclid's algorithm. Is there any doubt? कोई डाउट है तो आपको ट्राई करना चाहिए। 51 and 3, 57 and 3, 4, 69 and 12 and 176 and 5, ये सारे नंबर्स आपको ट्राई करना है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम से रिप्रेजेंट करना है यूक्लिड्स एल्गोरिथम में। ओके, मैं और कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। 1029 एंड 4, 2089 एंड 5, 20,083 एंड 3, 40,520 एंड 13। ओके, तो आप इन सब को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, सो दैट इज ऑल इन दैट। नाउ एप्लीकेशन फॉर्म पे आते हैं। चलिए, अब एप्लीकेशन में सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सबसे सिंपल क्वेश्चन इन द सेंस हमको प्रूव करना है कि हम नंबर्स को या नंबर्स के स्क्वायर को या नंबर के क्यूब को किससे रिप्रेजेंट करेंगे। दैट्स द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस। देखिए, आपको क्वेश्चन दे दिया है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6m plus 1, 6m plus 3 or 6m plus 5, where m is any integer. अब आपके लिए यहाँ पे समझने वाली बात है, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट m is an integer, 2 is an integer, the operation or derivative of 2 is also an integer, means 2 is multiplied by 5, 2 5s are 10, 2 is square 4 plus 5 9, this is also an integer. So all the derivative, addition, subtraction or multiplication of integer will give us another integer. Okay, तो हम कहीं भी इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन में उसको m से डिस्प्लेस करने में कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं करेंगे। आप देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, प्रूफ, क्वेश्चन का प्रूफ है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, बहुत इजी है, यहाँ समझने की कोशिश करो। इजी है, दूसरा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज देखिए, वी नीड टू शो दैट ऑल द ऑड इंटीजर्स। ओके, सो let all the integers, मैं यहाँ पे बीच में ब्रेक कर रहा हूँ बोर्ड को, जिससे कि हम एक ही
टाइम में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। लेट ऑल द इंटीजर्स आर बीइंग रिप्रेजेंटेड एज multiple of 6, so can be written as these can be written as 6q, 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4 and 6q plus 5. Is it clear? Is there in doubt? Now we'll have to prove odd. Odd के लिए मैंने आपको बताया था all the odd numbers can be represented as, suppose m में represent करें तो 2m even numbers and odd numbers 2m plus 1. Yes, correct. Odd numbers 2m plus 1. चलिए तो हम इनको 2m plus 1 फॉर्म में लिखेंगे. Now 6q is equal to 2 कॉमन लेते हैं, then it will be 3q. 3q को मैं सपोज m लिख रहा हूं क्योंकि if q is an integer then 3q भी इंटीजर है और 3q इंटीजर को मैंने m से रिप्रेजेंट कर दिया तो 2m हो गया. तो 6q ऑड है इवन? इवन. 6q प्लस 1. अब ये 6q को मैंने लिखा है 2m. कैन आई राइट 2m प्लस 1 डायरेक्टली? और यू मे राइट लाइक दिस, 2 is multiplied by 3q plus 1. So 2m plus 1. Here m is equal to 3q. ये हमको लिखना चाहिए कि m का वैल्यू क्या लिखा है. क्यों? क्योंकि q is an integer. Okay. Where q is an integer. ये यहाँ लिख देते हैं. Okay. That to positive. ये भी ध्यान रखिए कि हम यहाँ पे पॉजिटिव की बात कर रहे हैं. Is it clear? Now 6q plus 2 कॉमन लिया तो 3q plus 1 आ गया. 3q plus 1 क्या इंटीजर है? Yes. So this can be written as 2m where m is equal to 3q plus 1. Understood? Now 6q plus 3. So 6q plus 3 को मैं लिख रहा हूँ 6q plus 2 plus 1. क्यों? 6q plus 2 को अभी मैंने लिखा है 2m. So I must write that 2m plus 1 where m क्या है जो ऊपर था वही 3q plus 1. Is it clear? Same. मैंने 6q plus 2 को यहाँ 2m लिखा, इसको 6q plus 3 को 6q plus 2 plus 1 लिखा, 2m plus 1 लिखा. कोई डाउट नहीं. 6q plus 4, 6q plus 4 2 कॉमन लिया, 3q plus 2 क्या आ गया 2m. m क्या है यहाँ 3q plus 2. Is it clear? Now 6q plus 5. 6q plus 5 तो इसको 6q plus 5 को लिखूंगा 6q plus 4 plus 1. यहाँ 6q plus 4 को मैं क्या लिखूंगा? ये क्या है 6q plus 4 2m है तो दिस विल बी रिटन एज 2m plus 1 और m सेम होगा ऊपर वाला 3q plus 2. Is it clear? और उसके बाद कुछ भी नहीं है तो देखिए 6q plus 5 है 2m plus 1. 2m plus 1 फॉर्म जो है 6q plus 3 है और 6q plus 1 है. Hence proved. यहाँ पे हमको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. So all the odd integers. देखिए आप एक बात आपको समझ में आ गई होगी. ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 सारे इंटीजर आ गए इसमें. All the integers are involved in these 6 numbers. Hence all the odd integers are also involved in that. So all the odd integers, positive integers can be represented as 6m plus 1, 6m plus 3 and 6m plus 5 QED. Quite easily done. Is it clear? That is all. Okay. So please, should I make you understand once again? Yes, that's very simple. हमको प्रूव करना था any positive odd integer is of the form of 6m plus 1, 6m plus 2, 6m plus 5 where m is an integer. Okay, this was the question. क्वेश्चन को गौर से पढ़िए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोल्यूशन नहीं. सोल्यूशन तो कर लेंगे आप, क्वेश्चन समझिए, है ना. नाउ हमने एज्यूम किया
when all the integers are being represented as the multiple of 6. तो क्या लिख सकते हैं इनको? 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4, 6q plus 5. Now where q is an integer, positive integer, okay. Now 6q we have taken 2 common, 3q बचा तो 2m, because m we have just 3q displaced by m, क्योंकि हमको प्रूव m में करना है इसलिए, ओके ये इंटीजर है. नाउ 6q plus 1, 2 into 3q plus 1, 2m plus 1, it is odd. 6q plus 2, 2 into 3q plus 1, 2m, it is even. 6q plus 3, 6q plus 2 plus 1 means 2m plus 1, odd. Again 6q plus 4, 2m, 6q plus 5, even, odd, 2m plus 1. Hence all the odd integers can be represented as 6m plus 1, 6m plus 3, 6m plus 5. That is all. Understood? I hope आप सबको समझ में आया है. समझ में आया? That's very simple question. बहुत आसान क्वेश्चन है. अभी इसी क्वेश्चन में अगर स्क्वायर आ जाए, अगर क्यूब आ जाए, चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस को जिसमें कि स्क्वायर प्रूव करना हो हमको. आप कहीं भी वीडियो को पॉज करके नोट करें. क्वेश्चंस आपकी सीडब्ल्यू में होना चाहिए, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस जस्ट मे बी फ्रेम्ड एज इट इज. जैसा ये क्वेश्चन है या ये जो क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. प्लीज आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन हियर. देखिए, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m और 4m plus 1. ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 4m or 4m plus 1 where m belongs to z. m is an integer. अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, a perfect mathematician is who used to bring the solutions, who used to bring the answers using less efforts. परफेक्ट मैथमेटिशियन वो है जो कम एफर्ट्स लगा के सोल्यूशन निकालता है. तो आप एफर्ट्स को रिड्यूस कीजिए. यहाँ क्या है, अगर सपोज हमको प्रूव करना है 4, लेकिन हम 4 के मल्टीपल्स नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ क्या है, स्क्वायर है, तो हम मल्टीपल्स 2 का अगर ले तो 4 हो जाता है. तो वाई कांट वी टेक 2 लेने में क्या होगा, फायदा होगा. ओनली 2 नंबर्स का स्क्वायर करना है. 4 लेंगे तो स्क्वायर 4 नंबर्स का होगा. ओके, आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पता रहना चाहिए. मुझे पता है वीडियो देखते देखते आधे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये अननेसेसरी लिख रहा है सर. हम जानते हैं, मुझे पता है आप जानते हैं. आई एम जस्ट राइटिंग. ठीक है, मैं अपने आप को रीमेमोराइज करने के लिए लिख रहा हूँ. ठीक है, मैं कहीं गलती ना कर दूं. हेंस सी द प्रूफ देखिए. चलिए मान लेते हैं, लेट all the positive integers are being represented as multiple of 2, then they may be written as, कैसे लिख सकते हैं उनको, 2q और 2q plus 1 बस, where q belongs to z. q एक इंटीजर है. ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर करते हैं. ठीक है, नाउ 2q का स्क्वायर, इट इज 4q स्क्वायर, दैट इज 4m, where m is equal to q square. The square of any positive integer is अगेन अ पॉजिटिव इंटीजर. q का स्क्वायर भी एक इंटीजर रहेगा m. तो हमने क्या बता दिया कि आधे हाफ ऑफ द इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है, 4m होता है. हाफ क्यों, क्योंकि 2q और 2q plus 1 है. तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है आधे 2q है और आधे 2q plus 1 है. तो आधों का तो काम हो गया.
आपका 50% सोल्यूशन हो गया, बचा हुआ 50% कर लेते हैं। चलिए, तो 2q प्लस 1 का स्क्वायर करना चाहिए मुझे, 2q प्लस 1 का स्क्वायर 4q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2q दैट इज 4q प्लस 1। नाउ आई एम टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम हियर, सो 4 कॉमन, सॉरी 4, तो q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। मुझे बताइए कि q स्क्वायर प्लस q किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करके उसमें वही पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर दें। 5 है, 5 का स्क्वायर किया 25 में 5 ऐड किया 30 इंटीजर है, यस मीन्स फिर आएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 4m प्लस 1 सच दैट m इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। अब यहां देखिए आप कि हमने एक को तो लिख दिया है 4m और एक स्क्वायर लिख दिया है 4m प्लस 1, और मेरे ख्याल से आपका सोल्यूशन हो गया, बिकॉज इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। नाउ we'll just write hence all the square of all positive integers can be represented as 4q or 4q plus 1. Is it clear? That is one of the simplest question, QED, quite easily done. Okay, QED देखिए, this was the question, simplest question, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान बन गया। ध्यान रखिए, जब स्क्वायर है तो इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक 4q, ओके, आप 2 से लेके भी काम कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन दैट फास्ट। अब क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए क्यूब हो तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। क्यूब हो तो क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन है, इसको पॉज करके क्वेश्चन को लिख लिया होगा आपने, सॉल्यूशन को भी यहीं पॉज करके लिख लीजिए। ओके, आई होप कि आपने लिख लिया होगा, लिखना भी है सभी को। यू मस्ट नोट डाउन दीज क्वेश्चंस। मैं कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, या तो कोई भी क्वेश्चन इवन ऑड पे बनेगा, मैंने आपको एक ऑड का करके बताया है, या फिर कोई क्वेश्चन स्क्वायर पे बनेगा, एक स्क्वायर का कर दिया है, या फिर क्यूब पे बनेगा, एक क्यूब का कर रहा हूं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। क्यों? अरे पॉजिटिव इंटीजर ऑड या इवन, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, पॉजिटिव इंटीजर की पावर 3, पॉजिटिव इंटीजर की पावर 4 वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट द क्यूब्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, show that the cubes of any positive integers are of the form देखिए 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, वेयर m बिलोंग्स टू। क्वेश्चन को देखते ही आपका दिमाग कहाँ जा रहा है? क्वेश्चन को देखते ही आपका दिमाग जा रहा है कि 9m प्लस 1, 9m प्लस 2, 9m प्लस 3, 9m प्लस 4, 9m प्लस 5, 9m प्लस 6, 9m प्लस 8 बहुत बड़ा हो जाएगा। अरे क्यूब है और 9 है, वाई कांट वी टेक 3? हमको केवल 3 नंबर का एक्सपेंशन करना है, पर इसके पहले फिर आपको फार्मूला आना चाहिए। मुझे पता है कि आप सभी को ये फार्मूला आता है, जिनको नहीं आता है वो भी लर्न कर लीजिए। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। नोट कर लीजिए फार्मूला, तो लिखा हुआ है 2 मिनट तक, ठीक है। नाउ यस वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। प्रूफ देखते हैं, प्रूफ में क्या है। देखिए, दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्यूब है ना, लेट ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर बीइंग expressed as the multiple of
3, so they can be written as, कैसे लिखेंगे उनको, 3q plus 1, 3q plus 2, where q belongs to z, q is an integer। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस तरह का। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट्स वेरी सिंपल। क्यूब की बात की हमने 3 ले लिया, 9 नहीं लिया। 9 लेते तो 8 डिजिट्स, 9 बाइनोमियल्स का एक्सपांशन करना होता, 9m plus 1 की पावर 3, 9m plus 2 की पावर 3, आंसर वही आता, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाता क्वेश्चन। यहाँ सॉल्यूशन बहुत सिंपल हो जाएगा। सी नाउ देन 3q का क्यूब, 27q क्यूब। अगर मैं इसमें 9 कॉमन लेता हूं तो कितना बचेगा, 3q क्यूब। ओके, अब मुझे बताइए वेयर इट इज 9m, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब। मुझे बताइए कि अगर 3q का क्यूब, q इंटीजर है तो 3q का क्यूब इंटीजर होगा। 3q क्यूब सपोज 2 है, 2 का क्यूब 8, 3 × 24 इंटीजर है, यस इंटीजर है, तो 3q क्यूब इंटीजर होगा तो हम m लिख सकते हैं उसको, है ना। अब 3q plus 1 का करते हैं। चलिए मैं एक्सपांशन यहाँ करता हूँ, बोर्ड पे सफिशिएंट स्पेस है हमारे पास यहाँ। चलिए 9m plus 3m plus 1 का क्यूब करें इसका एक्सपांशन। चलिए 3m का क्यूब प्लस 3 इंटू 3m का स्क्वायर इंटू 1, ओके, प्लस अगेन 3m इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। कितना हो जाएगा ये, 3m का स्क्वायर क्यूब 27m क्यूब प्लस 9m स्क्वायर इंटू 3 27m स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9m प्लस 1। आप देखिए सारे 9 के मल्टीपल्स हैं, 9 आई एम टेकिंग कॉमन, 3, अरे यार क्यू लेना था, सॉरी, आई हैव टेकन m इंस्टेड ऑफ q। मान लीजिए कि ये q है, सॉरी, हाँ यहाँ देखिए q है, इज इट क्लियर। तो ये q स्क्वायर क्यूब प्लस, सॉरी, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस q, सॉरी, प्लस q प्लस 1, ये हो गया 9m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ये भी एक इंटीजर होगा, तो 9m प्लस 1 मीन्स 3q प्लस 1 का होल क्यूब कैसे लिख दिया आपने, 9m प्लस 1। यहाँ पे आपने 3q का होल क्यूब कैसे लिखा था, 9m के फॉर्म में लिखा था, अंडरस्टूड। अब हम 3q प्लस 2 का लेते हैं, 3q प्लस 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 3q क्यूब प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। कितना हो जाएगा ये, 27q क्यूब प्लस 27 2 सा 54q स्क्वायर प्लस 3 3 सा 9 4 सा 36q plus 8. These all are the multiples of 9. So this can be written as 9 times 3q cube plus 6q square plus 4q plus 8. इस पूरे को मैं m लिख रहा हूँ, तो 9m plus 8. So 3q plus 2 का होल क्यूब कैसे रिप्रेजेंट किया मैंने, 9m plus 8 से, ठीक है। Where m is equal to 3q cube plus 6q square plus 4q, ठीक है। तो देखिए आप, हो गए सारे नंबर, सारे 3q plus 1, 3q plus 2, 3q, बस 3 ही नंबर होते हैं, सारे इंटीजर्स यही होते हैं। तो 3q का होल क्यूब क्या हुआ, 9m, 3q plus 1 का होल क्यूब क्या हुआ, 9m plus 1, 3q plus 2 का होल क्यूब क्या हुआ, 9m plus 8. अंडरस्टूड, मीन्स हेंस all the cubes, hence the cubes of all the
positive integers can be expressed as 9m plus 1 or 9m plus 8, hence proved QED. समझ में आया आपको? I hope you understood that. Please note down this fast. ये आप सबको क्लियर हो गया है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्यूब का क्वेश्चन है। क्यूब के क्वेश्चन में 9 प्रूव करना था, हमने 3 लिया। स्क्वायर के क्वेश्चन में 4 प्रूव करना था, हमने 2 लिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। अभी रियल नंबर्स का एटलीस्ट 2 लेक्चर और बचे हैं। 5 लेक्चर्स में हम इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करो चैनल को। पूरा मैथमेटिक्स आपको 2 मंथ में हम फिनिश कर देंगे। अभी अप्रैल चल रहा है, मई और जून, मैक्सिमम 30 जून तक पूरा मैथमेटिक्स आपका फिनिश कर सकते हैं आप रेगुलर वर्कआउट करके। बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। रोज़ अगर आप मेरा एक लेक्चर भी देखेंगे तो 60 डेज में आपका पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट होता है, ओके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, डोंट फॉरगेट, ओके। हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय, गुड नाइट।